students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is keyboard and mouse. So here in this chapter we are going to study about the keyboard and mouse. So what is keyboard? What are the various keys on the keyboard? Then we are going to study about mouse. Then what is the structure of a mouse? Then we are going to study about the types of a mouse. So let's begin. कीबोर्ड एंड माउस आर टू कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और माउस क्या है आपके दो कॉमनली यूज होने वाले आपके इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा. कीबोर्ड एंटर करने के लिए यूज होता है डेटा को इनटू कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज. Whereas mouse is used to enter data into computer by clicking on buttons. So mouse किस लिए यूज होता है? एंटर करने के लिए डेटा किसके हेल्प से कर सकते हो आप? क्लिक करके बटन्स को. So what is keyboard? This is the keyboard. So keyboard consists of various buttons. इसमें बहुत सारे buttons होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? We call various buttons. These are the keys. So it is used to enter letter. You can enter letter, words, numbers and symbol to computer by pressing those keys. आप अगर इन्हें प्रेस करोगे इंग्लिश को आप लेटर्स नंबर्स वर्ड्स टाइप कर सकते हो. It comes in various sizes and shapes. So here these F keys are the functions keys on the top of the keyboard. These number keys are the numeric keys. This is the backspace key. This is the tab key. This is the caps lock key. This is the control key. This is your special key. So special keys क्या होती है आपकी? Shift, Control और Alt. These three are your special keys. So this is your space bar key through which you can give the space between words. These are your alphabet keys, that is QWERTY keyboard. So these are your alphabet keys. This is your enter key through which you press the enter. This is your delete key. These are your arrow keys. These also are the number keys. This is the keyboard, standard keyboard size. So now what are the various keys of the keyboard? A keyboard contains various types of keys which are used to enter different types of data into computer. Let's just learn about these keys in these sections. So आपने देखा होगा कीबोर्ड में बहुत सारे टाइप की कीज होती है जिसको क्या होता है हर की का डिफरेंट फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए. सो इफ वी प्रेस एस की सो फंक्शन की होती है वो. अगर आप एंटर की प्रेस करते हो उससे आपका वर्ड आप एंटर करते हो कमांड देते हो ओके की या फिर नेक्स्ट लाइन में आप पास हो जाते हो. सो now let's talk about function keys. What are function keys? The top line of the keyboard contains 12 function keys. जो top line होती है आपके कीबोर्ड की उसमें क्या होती है 12 function keys होती है. लाइक F1 से F12 तक होती है वो. So where each key is used for different purpose depending on the application for which it is used. हर की का क्या होता है डिफरेंट पर्पस होता है जिससे किस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसका मतलब क्या उसका फंक्शन है या वो क्या अप्लाई कर रहे हैं हम. सो F1 is generally used for help. F1 किससे यूज होती है? जनरली हेल्प के लिए यूज होती है. These are your functions key from F1 to F12. Now let's talk about number keys. There are two types of number key on your keyboard. Number key are used to enter number. ये किस लिए यूज होती है? नंबर एंटर करने के लिए. There are 10 number keys from 0 to 9. 0 से 9 तक 10 number keys होती हैं. It appears just below the function. ये कहाँ आती है? आपकी फंक्शन की से जस्ट बिलो आ जाती है और ये आपके राइट साइड में आती है. These keys also have the symbols which we can type by pressing the shift key. इन कीज में सिंबल्स भी होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं शिफ्ट की को प्रेस करके. And symbol keys together. You can also use C and numeric pad to the right side of the keyboard. आपको एक numeric pad देखा है हमने कीबोर्ड के right side में. Now let's talk about alphabet keys, that is QWERTY keyboard. There are 26 alphabet keys. How many keys are there on the keyboard? How many alphabets are there in your English? That is A to Z, that is 26 alphabets. So on a keyboard we have 26 alphabetical keys. These keys can be used to enter letters, words, sentences and paragraphs. इनकी हेल्प से आप letters type कर सकते हो, words type कर सकते हो, sentences and paragraphs type कर सकते हो. Now let's talk about arrow keys that help you in shifting the page. Arrow keys also known as cursor control key. इन्हें हम क्या कहते हैं? Cursor control key भी कहते हैं या फिर cursor movement keys कहते हैं. They are used to move the cursor on the screen. ये किस लिए यूज होती है? आपके cursor को move करने के लिए आपकी स्क्रीन पे. These are 4 in number. कितनी होती है? 4 होती है नंबर में. Which can move the cursor in any of the 4 direction. जो क्या करते हैं? cursor को move करते हैं किसी भी 4 direction में. So left, right,
अप एंड डाउन, ये आपकी लेफ्ट होती है, राइट होती है, ये आपकी अप होती है, ये आपकी डाउन की होती है। अ कर्सर इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन। एक कर्सर क्या होता है आपका, दिस एक कर्सर इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, जो ब्लिंक हो रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट बिगिन, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को राइट करना, टाइप करना बिगिन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज एंटर कीज? एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर। ये किस लिए यूज होती है? कर्सर को मूव करने के लिए टू द नेक्स्ट लाइन। इफ यू वांट टू मूव सम कंटेंट्स टू अ न्यू लाइन, अगर आपको कुछ कंटेंट को न्यू लाइन पे मूव करना, आप एंटर की प्रेस कर सकते हो। देन प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कंटेंट। आपको क्या करना है? कंटेंट के लेफ्ट में कर्सर को प्रेस करना है एंड क्या प्रेस कर देना है? फिर एंटर की को प्रेस कर देना फ्रॉम द कीबोर्ड। You will see that the text after the cursor have moved to the beginning of the next line. आप क्या देखोगे? जो आपका टेक्स्ट है कर्सर के बाद का, वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। Now let's talk about tab key. Tab key is used to skip multiple spaces. ये किस लिए यूज होता है? स्किप करने के लिए मल्टीपल स्पेसेस को, एंड जंप करने के लिए कर्सर को डायरेक्टली नेक्स्ट प्रेजेंट टैब स्टॉप पे। So you can also reset the default tab position. आप reset कर सकते हो default tab position अपनी needs के according. So now what is backspace key? Backspace key is used in case you want to delete some content of the text. अगर आपको delete करना है कुछ content अपने text का, this key can delete the text. ये जो key होती है delete कर देती है text जो appear होता है आपके left of the cursor में, one character at a time. एक बार में एक character delete करती है। Press this key multiple times. आपको ये press करनी होती है ये key multiple times delete करने के लिए multiple characters को। Delete key is another key which is also used for the removal of the text. Delete की जो दूसरी की होती है जो किस लिए यूज होती है? आपके टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, आपकी बैकस्पेस की तरह। बट डिफरेंस क्या होता है आपकी बैकस्पेस की और डिलीट की में? डिफरेंस बिटवीन बोथ द कीज इज दैट डिलीट की डिलीट्स द टेक्स्ट। डिलीट की क्या करती है? डिलीट करती है टेक्स्ट जो आपके राइट में अपीयर होता है आपके कर्सर के, और आपका क्या वन कैरेक्टर और एक बार में एक कैरेक्टर डिलीट करती है। बैकस्पेस की क्या करती है? Backspace की delete the text that appears to the left of the cursor, जो left of the cursor में होता है उसे delete करती है। ये भी one character at a time delete करती है। Now caps lock key. Caps lock key can be used to type capital letters. ये किस लिए यूज होती है? capital letters टाइप करने के लिए। For this you need to press this key once. उसके लिए आपको एक बार इस की को एक बार प्रेस करना होता है। आप caps lock टाइप कर सकते हो उसे एक्टिवेट करने के लिए, एक बार प्रेस कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए उसे फिर से प्रेस कर देते हैं। Now, spacebar key. Spacebar is the longest key on your keyboard. Is the longest key on the keyboard, which is used to add extra space between the words. ये किस लिए यूज होती है? एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के लिए वर्ड्स के बीच में। While typing some text, when you press spacebar key once, जब आप एक बार उसे प्रेस करते हो, वो क्या करती है? सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देती है। जब उसे आप मल्टीपल टाइम्स प्रेस करते हो, वो की क्या करती है? मल्टीपल टाइम्स का स्पेस देती है। यूज द थंब टू प्रेस स्पेस बार। हम थंब यूज करते हैं स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए। नाउ व्हाट आर स्पेशल कीज? स्पेशल कीज आर यूज्ड इन कंजक्शंस। ये किस में यूज होते हैं? कंजक्शंस में यूज होते हैं विद सम अदर कीज। लाइक दीज कीज इंक्लूड ऑल्ट की, कंट्रोल की। ये दूसरे कीज के साथ अकेले यूज होती है, दूसरे कीज के साथ यूज होती है। ऑल्ट की क्या कीज किस लिए यूज होती है? यूज इन कंजक्शन विद सम अदर कीज टू परफॉर्म सम टास्क। एक दूसरे कीज के साथ यूज होती है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। लाइक ऑल्ट प्लस एफ के साथ यूज होते हैं फाइल ओपन करने, फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए। नाउ कंट्रोल की, यू कैन यूज कंट्रोल की इन कंजक्शन। आप यूज कर सकते हो कंट्रोल की इन कंजक्शन कुछ अल्फाबेट कीज के साथ उसे कैपिटल करने के लिए, टू परफॉर्म सम फंक्शन। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस की क्या करता है? कॉपी करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपके और या फिर ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल प्लस वी क्या कर देता है? पेस्ट कर देता है। कंट्रोल प्लस एफ क्या कर देता है? सेव कर देता है डॉक्यूमेंट को आपके। शिफ्ट की कैन बी यूज विद अल्फाबेटिकल कीज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। ये आपके किसके साथ यूज होती है? अल्फाबेटिकल कीज के साथ यूज होती है टाइप करने के लिए लेटर्स को। इट कैन ऑल्सो बी यूज विद नंबर कीज। आप इसको नंबर कीज के साथ यूज कर सकते हो टाइप करने के लिए। स्पेशल कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले होता है आपकी जो टू it can also be used with some number keys to type special characters displayed on those keys like exclamation at the rate, hashtag, dollar sign, percentage, and etc. Now let's talk about mouse. A mouse also called a pointing device. Mouse को क्या कहते हैं? हम pointing device भी कहते हैं। It is used to control the pointer on the screen. ये किस लिए यूज होता है? आपके स्क्रीन के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। When you move a mouse, जब आप मूव करते हैं माउस को, माउस पैड पे पॉइंटर मूव करता है आपकी स्क्रीन पे।
Now what is structure of a mouse? A mouse is small in size. एक small size में होता है, उसके दो buttons होते हैं. Left mouse button, right mouse button. It appears to the left of the left side of the mouse. ये कहाँ appear होता है left mouse button? आपकी left side में. Right mouse button आपके mouse के right side button में होता है. एक आपका क्या होता है, इसमें scroll wheel भी होता है. Most of the mouse also has a scroll wheel. बहुत सारे माउसेज में हमारे scroll wheel भी होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन होता है लेफ्ट और राइट बटन के बीच में. इट इज यूज टू स्क्रॉल द पेज. किस लिए यूज होता है? स्क्रॉल करने के लिए पेज को. ये कनेक्टेड होता है आपके सीपीयू से विद द हेल्प ऑफ द cable. So this is a diagram of a mouse. This is the scroll wheel. This is the left mouse button. This is the right mouse button, and this is the cable through which the mouse is connected to your CPU. There are wireless mouse devices and keyboards too these days. आजकल बहुत सारे wireless mouse devices भी आ रहे हैं, बहुत सारे wireless keyboard devices भी आ रहे हैं. Now let's talk about types of mouse. Trackball mouse. This is the trackball mouse. Trackball is a mechanical mouse. ये mechanical mouse होता है जिसमें क्या होता है, बॉल होता है उसके अंदर. When you move the mouse on a mouse pad, जब आप move करोगे mouse को mouse pad पे, वो move कर बॉल में move करती रहती है उसके साथ. As the ball move, the pointer moves on the screen. जैसे जैसे बॉल move करेगी उसके नीचे की ऐसे ऐसे आपका pointer move करता है स्क्रीन पे. Next is optical mouse. This is the optical mouse. It is an optical mouse. There is an infrared light. इसमें एक infrared light होती है जो किस लिए यूज होती है, मूव करने के लिए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, एंड देयर इज नो बॉल इनसाइड द माउस. इसके अंदर कोई बॉल नहीं होती. नेक्स्ट इज वायरलेस ऑप्टिकल माउस. दिस टाइप ऑफ माउस इज सिमिलर टू ऑप्टिकल माउस. ये कैसा होता है? सिमिलर होता है आपके ऑप्टिकल माउस की तरह. बट क्या डिफरेंस है इनके बीच में? वायरलेस ऑप्टिकल माउस यूज करता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को, एंड देयर इज नो यूज ऑफ वायर केबल. इसमें कोई यूज नहीं होता वायर केबल का, इसमें होता है वायर केबल का यूज. ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है. एंड इन केस ऑफ अदर टाइप ऑफ माउसेज, so here assess yourself. Match the following: trackball mouse, optical mouse, and wireless mouse. This is the trackball mouse, this is the optical mouse, and this is the wireless optical mouse. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.